Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. In our previous class, we left our discussion of our subject matter, that how we will develop our subject matter for our essay. Here our topic was you and your subject matter. This was our topic, you and your subject matter. And first let me recapitulate the main points of our previous discussion. When you are deciding for a subject matter, then it is not important. It is not merely important that you find out some material from your books and to describe them. But the important thing is to find your own voice. You are required to bring your own voice into your essay, into your topic, into your subject matter. And for bringing your own voice into your subject matter, the first thing is that you must not try for the right or the correct answer, but your best answer. So we discuss in detail that there are some problems with the right answer or with the correct answer. Even if there is a correct answer, then your supervisor or your audience may not agree on these things. So therefore you will try for your best answer, and in order to find your best answer, you are not supposed to give merely your own judgment, but your considered judgment. Not merely your opinion, but your considered judgment. And then the next important thing regarding subject matter was that description is not enough. Description is important because while analyzing or discussing a topic, first you will have to describe it, but relying wholly on the description is not a very good technique for developing your subject matter. So after describing, you will have to analyze or discuss your topic, your subject matter. And here the last point which is connected to this second point is that often when a student play an essay and they submit to their supervisors, to their teachers, then two of the more common comments written by tutors on student essay are too descriptive and needs more analysis. तो इस तरीके से ये ट्यूटर्स अपने स्टूडेंट्स के एसेस पे लिखते हैं कि आपका जो एसे हैं वो डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा हैं और इसमें एनालिसिस की ज़रूरत होती है. तो इसके लिए आपको योर ओन वॉइस लाना पड़ता है. देखिए, जब हम डिस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं तो वही जो किताब में लिखा होता है, जिस किसी भी सोर्स से आपको मिल रहा होता है, तो आप उसी को लिखते हैं. लेकिन जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो इस एनालिसिस में फिर हम अपना जो वॉइस है, जो हमारा अपना कंसीडर्ड जजमेंट है, हम उसको ले आते हैं. अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे काम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है कि अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही नहीं बल्कि वो एनालिसिस पर भी फोकस करे. सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ही काम नहीं चलता, बल्कि आपने उसको एनालाइज भी करना है. तो आप एनालाइज उसको कैसे करेंगे? तो एनालाइज करने के लिए फिर अमूमन स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लिखते हैं इन माई ओपिनियन. तो ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इन माई ओपिनियन जब आपने लिख दिया तो इसका मतलब है कि आपने अपने ओपिनियन को अपनी इस सब्जेक्ट मैटर में ले आया. अब यहाँ पर एक और मसला बन जाता है. जब आप अपने ऐसे में लिखते हैं, अपने किसी टॉपिक, अपने पॉइंट के मुतलिक आप लिखते हैं इन माई ओपिनियन, तो फिर आपका ट्यूटर, आपका टीचर आपसे कहता है वी डोंट वांट योर ओपिनियन, हमें आपकी ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है. तो देखिए, ये बज़ाहिर कॉन्ट्रडिक्टरी दिखाई दे रहा है. एक तरफ अभी तक हम ये पढ़ रहे थे इसी बुक में, मैं आप लोगों को इसी बात की पे बार बार जोर दे रहा था कि आप लोग सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही नहीं बल्कि आप एनालिसिस पे जाए, आप डिस्कशन पे जाए. तो जब एनालिसिस और डिस्कशन और ये एनालिसिस में और उसमें आप जाते हैं डिस्कशन में, तो फिर आपको लाजमन अपना ओपिनियन तो लाना पड़ेगा. तो जब आप कहते हैं कि इन माई ओपिनियन, तो फिर आपका टीचर आपसे कहता है कि वी डोंट वांट योर ओपिनियन. तो ये तो बज़ाहिर कॉन्ट्रडिक्टरी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है.
what the tutor is objecting is opinion unsupported by reason and judgment. देखिए यहाँ पर जो मसला है आपका मसला ये नहीं है कि आपने अपना ओपिनियन दिया है, आपका मसला यहाँ पर ये बन रहा है कि आपने अपनी ओपिनियन को एविडेंस से और रीज़न से सपोर्ट नहीं किया है, तो सिर्फ आपने हवा में तीर चलाया है। तो हवा में तीर चलाना और आप ये कह देना कि आप अपनी तरफ से कुछ भी कह दे, तो ये आपका ओपिनियन नहीं है। तो यहाँ पर जब आप एनालिसिस और डिस्कशन करते हैं तो एनालिसिस और डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई भी बात कहे और आपकी उस बात में आपने अपनी उस बात को रीज़न से और आपने उस बात को एविडेंस से उसको प्रूव न किया हो। तो अगर आप अपनी बात को रीज़न और एविडेंस से प्रूव करें तो फिर कोई मसला नहीं है और ना टीचर आपके इस पे ये लिख देता है। तो यहाँ पर लेट मी रिपीट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब टीचर उनसे कहता है कि यूर ऐसी इज़ टू डिस्क्रिप्टिव, आप इसमें एनालिसिस लाएं, आप इसमें डिस्कशन ले आए, तो एनालिसिस और डिस्कशन को लाने के लिए फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लिखते हैं इन माई ओपिनियन। तो जब वो इन माई ओपिनियन की बात लिख देते हैं तो फिर टीचर उनसे कहता है वी डोंट वांट योर ओपिनियन। तो ज़ाहिरी बात है कि वो जो पहले हमने कह दिया और यहाँ पर जो कह रहे हैं उसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। टीचर जिस चीज़ पर आपकी ऑब्जेक्शन कर रहा है वो ये है कि आपने अपने आर्गूमेंट्स तो दिए हैं, आपने अपनी ओपिनियन तो दिए हैं, लेकिन ओपिनियन के साथ आपने रीज़न और एविडेंस नहीं दिए हैं। तो ये एविडेंस और रीज़न के साथ जब आप अपना ओपिनियन देते हैं तो फिर उसमें कोई मसला नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आपने सिर्फ आपने ये करना है कि अपने आर्गूमेंट्स को लाने के लिए, अपने आर्गूमेंट्स को बयान करने के लिए आपने अपनी ओपिनियन को बयान करने के लिए एविडेंस और रीज़न का सहारा आपको लेना होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इन चैप्टर 2 यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस बुक का जो चैप्टर 2 है, वी शैल एग्जामिन क्लोजली हाउ व्हेन वी आर फर्स्ट कमिंग टू ग्रिप विद एन ऐसे टॉपिक इट इज़ क्वाइट नेसेसरी टू डिसाइड व्हाट योर प्रोविजनल ओपिनियन माइट बी। देखिए, आप लोगों का पहले एक प्रोविजनल ओपिनियन होगा। आप जिस टॉपिक के हवाले से, जिस सब्जेक्ट मैटर के हवाले से आप कुछ लिखते हैं, तो आपका एक इब्तिदाई कोई नज़रिया होगा, इब्तिदाई कोई ओपिनियन होगी, और शायद ये ओपिनियन आपका कोई प्रेजुडिस हो या आपका कोई कंजेक्चर हो। यहाँ पर कार्ल पॉपर की उन्होंने मिसाल दी है कि कार्ल पॉपर उसको कहता है कि जो इनिशियल प्रोविजनल ओपिनियन आपका होता है, इब्तिदाई ओपिनियन जो आपका होता है अपने सब्जेक्ट मैटर या टॉपिक के हवाले से, वो मेयरली एक प्रेजुडिस होता है, वो एक कंजेक्चर होता है। फिर इसी कंजेक्चर को एक्सक्यूज मी फिर इसी कंजेक्चर को आपने, इसी प्रेजुडिस को आपने कंसीडर्ड या रीजनड जजमेंट में बदलना पड़ता है आपको। यहाँ पर देखिए, ये रीजन जजमेंट, ये जो इब्तिदाई आपकी ओपिनियन थी वो था प्रेजुडिस, वो था कंजेक्चर। अब इसको आपने किस चीज़ में तब्दील करना है, उसको आपने रीजन जजमेंट में तब्दील करना होता है। और ये जो रीजन जजमेंट होता है might be significantly different from your initial reaction to the essay topic। तो देखिए, essay topic पर आपका जो इनिशियल रिएक्शन था, वो इनिशियल रिएक्शन किया था, वो आपका प्रोविजनल ओपिनियन था। यहाँ पर इनिशियल रिएक्शन आपका जो है, ये इनिशियल रिएक्शन आपका किया था, ये असल में आपका ये प्रोविजनल ओपिनियन था। तो ये इनिशियल रिएक्शन या आपका जो प्रोविजनल ओपिनियन होता है या जो आपका प्रेजुडिस या कंजेक्चर होता है, जब ये रीजन जजमेंट में तब्दील हो जाता है तो ये काफ़ी तब्दील होता है, ये काफ़ी चेंज होता है ऐसे टॉपिक के हवाले से। अच्छा, तो विच माइट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम initial reaction to the essay topic। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बयान किया गया है, एग्जाम्पल आपको बताया गया है। एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, लेट मी रिमूव दिस ड्राइंग।
ایک آسٹریلین ہسٹورین ہے، اس کا نام ہے میننگ کلارک. تو اس کی ایک ایگزامپل، اس کی جو رائٹنگ ہے اس کی رائٹنگ سے ایک ایگزامپل آپ کو دی گئی ہے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا جو انیشیل وہ اوپینین ہوتا ہے، جو آپ کا جو پریجوڈس ہوتا ہے، جس کے لیے یہاں پر پروویژنل اوپینین، پریجوڈس یا کنجیکچر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ کس طریقے سے آپ اس کو ریزنڈ ججمنٹ میں تبدیل کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آگے وہ اس کی جو اپنی رائٹنگ ہے اس کی یہ میننگ کلارک کی، وہ بیان کی گئی ہے. I happen to have both. I happen to have the good fortune to experience in childhood all the conflicts which were central to the human situation in Australia. آسٹریلیا میں جو انسانی حالات وغیرہ تھے ان کا جو ایکسپیرینس تھا اور ان میں جو کنفلکٹس اور کانٹرڈکشنز وغیرہ تھے وہ بچپن ہی سے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایکسپیرینس کیے. My mother came from the old patrician landed میگنیفیکوز ان آسٹریلیا. آسٹریلیا کے جو لینڈڈ جینٹری تھی، جو بڑے بڑے وہ ایلیٹ کلاس جو ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میری ماں اس ایلیٹ کلاس سے، آسٹریلیا کی اس ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھی. لیکن مائی فادر فرام ورکنگ کلاس، لیکن اس کا جو والد تھا وہ ورکنگ کلاس سے تھا. تو یہاں پر دیکھیے وہ جو کنفلکٹس آپ کو بتا رہا ہے کہ بچپن میں اس نے جو آسٹریلیا میں یہ کنفلکٹس وغیرہ دیکھے، اس میں جو سب سے بڑا کنفلکٹ اس کی ماں جو تھی وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کا والد جو تھا وہ ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتا تھا، فرسٹ فرام لنڈن دین آف سڈنی. سو ایئرز لیٹر وین آئی ریڈ دوز ورڈز بائی کارل مارکس، اور کارل مارکس نے کیا کہا تھا؟ کارل مارکس نے یہ لکھا تھا کہ دی ہسٹری، یہ یہ دیکھیے، دی ہسٹری آف آل ہدر ٹو ایگزسٹنگ سوسائٹی از دی ہسٹری آف کلاس اسٹرگل. تو کارل مارکس نے جب یہ بات کہی کہ انسانی تاریخ جو ہیں وہ کلاس اسٹرگل کی تاریخ ہیں، تو وہ کہتے ہیں چائلڈ میموریز میڈ می سے اینڈ دیٹ از ٹرو ٹو. ہاں یہ بات تو سچ ہے، اس نے خود ایکسپیرینس کیا تھا. اس کا جو ابتدائی پریجوڈس تھا اس حوالے سے کہ انسانی تاریخ جو ہیں وہ اس طریقے سے چلتی ہیں کہ اس میں جو کنفلکٹ ہوتا ہے وہ ورکنگ کلاس اور جو ایلیٹ کلاس ہوتا ہے ان کے درمیان وہ جو ٹسل ہوتا ہے، جو اسٹرگل ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے. تو جب میں نے سالوں بعد کارل مارکس کی ان باتوں کو سنا، میں نے پڑھا کہ دی ہسٹری آف آل ہدر ٹو ایگزسٹنگ سوسائٹی از دی ہسٹری آف کلاس اسٹرگل، چائلڈ میموریز میڈ می سے اینڈ دیٹ از ٹرو ٹو. جسٹ ایز ایئرز آف ریڈنگ اینڈ آبزرویشن لیٹر ور ٹو فل ان دا ڈیٹیلز فار دیٹ proposition about human society and raise doubts about what it leaves out. تو دیکھیے یہاں پر اس کا جو مین فوکس ہے رائٹر کا، وہ اس چیز میں کہ ابتدا میں اس نے جو کچھ دیکھا تو وہ اس کے اپنے ایک پروویژنل، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک آنسر تھا ان مسائل کے حوالے سے، ان کا ایک پریجوڈس تھا. لیکن بعد میں جب اس نے کارل مارکس کے ان کتابوں کو اور ان ساری چیزوں کو دیکھا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ان کی یہ جو سوچ تھی کہ انسانی جو تاریخ ہیں اس میں یہ کنفلکٹس آتے رہتے ہیں، جس میں یہ ایلیٹ کلاس اور یہ جو ورکنگ کلاس ہیں ان کے درمیان یہ اسٹرگل یا یہ ٹسل ہوتا رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مجھے اس بات کی یقین ہو گئی. تو یہاں پر آپ کو وہ کارل مارکس وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں بتائی جا رہی، بلکہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے انسان کی جو اپنی آبزرویشن ہوتی ہیں، انسان کا جو اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ جب اکیڈیمیا میں جاتے ہیں تو پھر آپ کا وہ پریجوڈس جو پہلے ہم نے بیان کیا، کنجیکچر یا آپ کا وہ پروویژنل اوپینین جو ہوتا ہے، پھر وہ کس چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ وہ یہاں ریزنڈ ججمنٹ میں چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں اس وہ جو میننگ کلارک کی جو ایگزامپل آپ کو بتائی گئی ہے، یہاں پر اس کا جو یہ جو رائٹنگ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ کس طریقے سے اکیڈیمیا میں اکیڈیمک ڈسکورس کے ذریعے سے ان کی اوپینین تبدیل ہو گئی اور پھر وہ ریزن ججمنٹ میں تبدیل ہو گئی. یہاں پر اسی بات کو، یہ جو میننگ کی بات ہے اس کو بیان کیا گیا، اس کی تشریح کی گئی ہے.
In beginning with our prejudice and opinions and then gradually converting them through reading and writing into considered judgment, we are committing a great deal of our own selves to answer we give. तो देखिए जब इस तरीके से आप अपने प्रेजुडिस को, अपने ओपिनियन को कंसीडर्ड जजमेंट में ले आते हैं, तो इसमें आपका अपना जो ज़ाती नुक्ता नज़र होता है, आपके जो ज़ाती लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें आ जाते हैं. वी मस्ट बी प्रिपेयर टू मीन वट वी से. देखिए ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू मीन वट वी से. आप जो कुछ कहना चाहते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं और जो कुछ आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यानी मतलब है कि आपने जो कागज़ पे, जो अपने पेज पर जो अल्फाज लिखे हैं, आपका एक्चुअली मकसद भी यही है. तो इन चीज़ों में आपका कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए. व्हाट यू मीन एंड व्हाट यू से, ये दोनों चीज़ों में बैलेंस आना चाहिए. वी मस्ट बी प्रिपेयर टू मीन व्हाट वी से. तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऐसे टॉपिक के हवाले से अपनी रीजन जजमेंट को, कंसीडर्ड जजमेंट को लाने के लिए. वी मस्ट बी प्रिपेयर टू मीन व्हाट वी से, बट वी मस्ट आल्सो बी एबल टू फील ए सर्टन कॉन्फिडेंस इन आवर जजमेंट्स. आपने जो जजमेंट्स बयान किए, आपने जो कंसीडर्ड जजमेंट ले आए, उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए. दिस कॉन्फिडेंस डज नॉट कम सो मच फ्रॉम विद इन अस एज फ्रॉम द सक्सेस विद विच आवर लैंग्वेज फार्मुलेट्स द जजमेंट एंड बैक्स इट अप. देखिए ये चीज़ हमको वो एकेडमिक राइटिंग का जो फोर्थ एलिमेंट है, आपकी जो लैंग्वेज है, उसकी तरफ इशारा करती हैं कि जो कुछ आपने वो किया, कंसीडर्ड जजमेंट ले आया, तो क्या आपके पास लैंग्वेज के ऐसे रिसोर्सेज हैं, आपके पास ऐसे वर्ड्स हैं, आपने ऐसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपने सीखे हैं जिससे आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकें. तो ये व्हाट वी मीन एंड व्हाट वी से, व्हाट वी मीन आपका सब्जेक्ट मैटर है एंड व्हाट वी से ये आपकी लैंग्वेज है. तो देखिए आपने जो सब्जेक्ट मैटर तो तैयार किया, और सब्जेक्ट मैटर सिर्फ ये आपके प्रेजुडिस नहीं है, बल्कि ये आपका एक कंसीडर्ड जजमेंट भी है. एंड व्हाट वी से वो आपके लैंग्वेज रिसोर्सेज हैं, आपकी ग्रामर है. तो इन दोनों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए. तो ये हमें उसकी तरफ ले जाते हैं कि फिर उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सिर्फ ये बात नहीं है कि फिर आपने वो अपना सब्जेक्ट मैटर तो तैयार किया, लेकिन फिर आपके पास लैंग्वेज रिसोर्सेज नहीं है ताकि आप उसमें उसको एक्सप्लेन कर सकें. इफ़ यू फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट to get words onto the page, then what is probably at fault is your understanding of what you are trying to say or an insufficiently worked out argument to support it. देखिए अगर आपके पास ये मसला है कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो इन दो चीज़ों में से एक मसला है. या तो मसला यहाँ पर है कि आपका जो आर्गूमेंट है उस पर आपने काम नहीं किया है, आपके पास इनसफिशिएंटली वर्कड आउट आर्गूमेंट टू सपोर्ट इट. आपके पास वो आर्गूमेंट्स, आपके पास वो दलाइल, आपके पास वो रीज़न, आपके पास वो जो किताबें पढ़ी हैं या उसके लिए आपके पास जो रेफरेंसेस है वो नहीं है, या आपने उसको सही तरीके से समझा नहीं है. आपके पास लैंग्वेज का मसला है. व्हाट इज़ प्रॉब्ली एट फॉल्ट इज़ यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से आर. ये देखिए ये जो कुछ आप कह रहे हैं आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो आपके लैंग्वेज में इशू है, लैंग्वेज इशू. या तो ये मसला है या आपके आर्गूमेंट का मसला है. दिस कैन ओनली बी ओवरकम बाई गोइंग बैक टू योर बुक्स और बाई फोर्सिंग योर सेल्फ टू क्लैरिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू बाई राइटिंग ए शॉर्ट समरी ऑफ इट. तो देखिए उसका हल एक ये है कि आप वापस जाएं, जो कुछ आपने पढ़ा है उसको दोबारा से पढ़ें, आप अपनी किताबों को निकालें, आप अपने वो जो नोट्स वगैरह आपने क्रिएट किए बनाए हैं, तो आप उसको देखें कि कहाँ पर आपसे गलती हो गई है, और या अगर गलती नहीं है तो आप किस पॉइंट पे आप उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. तो इस गल्फ को यॉनिंग गल्फ इसको कहा है, टू से एंड व्हाट वी मीन. इस चीज़ को कि जो कुछ मेरा जो सब्जेक्ट मैटर है और उसको मैंने किस तरीके से प्रेजेंट करना होता है, इस गल्फ को ख़त्म करने के लिए, इस गैप को ख़त्म करने के लिए फिर आपको अपनी जजमेंट पर, आपको अपनी थॉट्स पर काम करना पड़ता है.
अच्छा, जब आप ये काम करते हैं कि आपके पास ये मसला होता है कि आपने जो कुछ लिखा है उसमें मसला है, या आपके पास वो आपकी तो है सब्जेक्ट मैटर तो है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास लैंग्वेज रिसोर्सेज का मसला हो रहा है, तो आप बार बार वापस जाते हैं, अपने नोट्स में जाते हैं अपने, या अगर आपने कंप्यूटर से लिखा हो कंप्यूटर में इन चीज़ों को डिलीट करते हैं वगैरह वगैरह। तो इसके लिए यहाँ पर इस बुक ने एक लफ्ज़ यूज़ किया है, सेकेंडरी राइटर्स ब्लॉक। अगर आपको याद हो कि हमने इब्तिदाई जो एलिमेंट था, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एकेडमिक राइटिंग, जिसमें हमने कहा था कि जो पहला एलिमेंट होता है वो राइटर होता है। और राइटर कौन है? राइटर आप खुद हैं। तो कभी कभार हम लिख नहीं पाते, तो उसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ हुआ था, राइटर्स ब्लॉक। फिर उसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बयान की गई थी कि इस तरीके से आप अपने आप को डेवलप कर सकते एज ए राइटर। यहाँ पर जब आप अपने सब्जेक्ट मैटर को डेवलप कर रहे होते हैं और आप सिर्फ ओपिनियन और प्रेजुडिस नहीं लाते, बल्कि आप उसमें एक कंसीडर्ड जजमेंट ले आते हैं और बार बार आप जाते हैं और इन चीज़ों को डिलीट करते हैं, तो उसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है, राइटर्स ब्लॉक। तो दी होल प्रोसेस टू गो थ्रू अगेन एंड अगेन, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, राइटर्स ब्लॉक। इफ़ यू स्पेंड इन ऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ टाइम एगोनाइजिंग और चॉइसेस ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, इट मे वेल बी दैट यू आर एमिंग फॉर ए काइंड ऑफ परफेक्शन एंड प्रिसीजन विच इज़ मोर देन यू कैन हैंडल एट दिस टाइम। तो देखिए यहाँ पर वो जो आप बार बार जाते हैं, आप उसमें शायद इस वजह से आप बार बार जाते हैं कि आप उसमें परफेक्शन लाना चाहते हैं, आप उसमें प्रेसिजन लाना चाहते हैं। और इस मसले के हल के लिए उन्होंने यहाँ पर बयान किया है, परफेक्शन एंड प्रेसिजन फॉर दियर ओन सेक आर फॉल्स गोल्स इन एकेडमिक इंक्वायरी एंड राइटिंग। देखिए, आप सिर्फ परफेक्शन ही को लाना चाहते हैं, आप सिर्फ एक सेंटेंस को, एक बेहतरीन सेंटेंस को लिखना चाहते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट मैटर आपका कुछ नहीं है या मतलब है तो उसके साथ कोई है। तो ये चीज़ें जब आप परफेक्शन और प्रेसिजन सिर्फ अपने इस वजह से ले आते हैं कि बस आपका वो ऐसे बेहतरीन बन जाए फॉर इट्स ओन सेक हो, तो ये फाल गोल्स होते हैं। ये आपका गोल नहीं होना चाहिए कि आप सेंटेंस को बनाएं, आप बेहतरीन सेंटेंस को बनाएं और उसके बाद उसमें कुछ ना हो। ए टेंडेंसी टू परफेक्शनिज्म स्पेशली इन रिलेटिवली सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग इज ऑफन ए साइन ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। शायद आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप उसमें परफेक्शन लाना चाह रहे हैं और बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पर लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख दूँ, लेट मी राइट ए सेंटेंस फॉर यू पीपल। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ कि द केट इज राइटिंग अ लेटर। अगर आप इस सेंटेंस पे सोचें, अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखें, तो द केट, देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, इज राइटिंग ये मेरा वो है वर्ब है, राइट हैं, उसके साथ मैंने वो पार्टिसिपल लगा दिया है ing, और इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब हैं इज़, तो ये वो प्रोग्रेशन को या कंटिन्यूस जो टेंस है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर लेटर वो मेरा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट एंड इज़ प्रेसिडेड बाय दी प्रेडिकेट। तो इस सेंटेंस में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक सेंटेंस है। लेकिन कभी आपने इसकी मानी पे सोचा है, द केट इज राइटिंग अ लेटर, इसका क्या मतलब निकलता है? तो देखिए, ये यहाँ पर वो जो आपको बता रहा है कि सिर्फ आप परफेक्शनिज्म ला रहे हैं, आप सिर्फ परफेक्ट अपने आप कुछ आपको बना रहे हैं, आप सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग जो है आप उसी को सिर्फ वो बना रहे हैं। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग। सिर्फ आप वो बाहर से उसको खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन अंदर से आपने उसको क्या लिख दिया है, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए मिसाल लिख दी कि द केट इज़ राइटिंग अ लेटर, सेंटेंस को अगर आप सोचें, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है, द केट इज राइटिंग अ लेटर, बट इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि कोई केट अपने हाथ में पेन ले ले और वो ख़त लिखना शुरू कर दे? तो ये पॉसिबल तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता। हालांकि वो बाहर से वो बिल्कुल परफेक्ट है, सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी एक और मिसाल वो एल्डोस हैक्सले ने ब्यूटी इंडस्ट्री में लिखा है। वो ऐसी के हवाले से तो उसने नहीं लिखा है, किसी और कॉन्टेक्स्ट में उसने लिखा है, वो ब्यूटी के हवाले से, या इंसान जो अपनी ज़ाहरी तौर पर अपने आप को खूबसूरत बना देते हैं, तो उसने वहाँ पर एक सिमिली यूज़ की है जार की।
کہ آپ کے پاس کوئی جار ہے اور اس جار پر باہر اوپر کا جو سرفیس ہے وہ اس کو بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے، لیکن اس جار کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کیچڑ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر بہترین چیز مثلا شہد، ہانی، وہ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس جار کے اندر کی چیز ہے، نہ کہ اس کا سٹرکچر، نہ کہ اس کی باہر کی جو تہ ہے۔ ٹھیک، باہر کی تہ اگر خوبصورت ہو تو یہ جار اور بھی خوبصورت دکھائی دے گا، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کیچڑ، کوئی گند وغیرہ نہ ہو۔ تو یہ ایسے کے حوالے سے بھی یہاں پر وہ میں اس کو ایسے کے ساتھ بھی تھوڑا سا آپ لوگ کے لیے کنیکٹ کر دوں کہ آپ لوگ صرف یہ سپرفیشیل اسپیکٹ آف رائٹنگ پہ نہ جائے، یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ امپورٹنٹ جو ابتدائی سٹیپ ہیں آپ کا، وہ آپ کا سبجیکٹ میٹر ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ میٹر کو ڈیولپ کریں۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ سپرفیشیل اسپیکٹ آف رائٹنگ جو ہے، اگر آپ اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، آپ پرفیکشنزم پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور آپ سبجیکٹ میٹر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے۔ کانفیڈنس کین ناٹ بی بلڈ اپ بائی ریپرزینٹنگ اے پرفیکٹلی گرامیٹیکل ایکسٹیریئر ٹو یور ریڈر، جس طریقے سے ابھی میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ سینٹینس لکھ دیا تھا، بٹ رادر بائی ٹرائنگ آؤٹ یور آئیڈیاز ان لینگویج دیٹ یو کین بیسٹ موسٹر آن دی اوکیزن۔ اف یو فیل دیٹ دیئر از سم تھنگ رانگ ود دیٹ لینگویج، scrutinize first the idea you are trying to express۔ دیکھیے، یہ اگر آپ کے پاس مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پاتے، تو سب سے پہلی چیز آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے اپنے آئیڈیاز کو دیکھنا ہے، اپنے سبجیکٹ میٹر کو دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے لینگویج پہ آنا ہے کہ لینگویج میں بھی آپ اس کو صحیح طریقے سے اس کو مینشن بھی کریں، اس کو ایکسپریس بھی کریں۔ If, on the other hand, you are the kind of writer who rarely changes anything, or who once the draft essay is completed gladly forgets about it, you need to begin thinking very seriously about what writing an academic essay entails۔ اچھا، یہاں پر جو پوائنٹ اس پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بعض اسٹوڈنٹس اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، وہ جو پہلا پوائنٹ تھا وہ کیا تھا، شاید آپ کا کانفیڈنس نہیں ہے آپ کے سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے، آپ کے لینگویج ریسورسز کے حوالے سے۔ بعض لوگ اوور کانفیڈنٹ بن جاتے ہیں۔ اوور کانفیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر نے آپ کو کوئی ایسے دیا ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے یہ فلاں تاریخ تک اس کو سبمٹ کرنا ہے۔ اب اس تاریخ، اس ڈیٹ سے صرف 10-12 گھنٹے پہلے، یعنی مطلب ہے اس سے جو پہلی رات ہے اس میں آپ ایسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور کل صبح پھر آپ اپنے ٹیچر کو دے دیتے ہیں۔ یعنی مطلب آپ اس کو ریوائز نہیں کرتے، آپ نے جو کچھ لکھ دیا بس آپ نے ٹیچر کو تما دیا اور آپ نے اس کو ریوائز نہیں کیا۔ تو یہ بھی غلط بات ہے، یہاں پر آپ کو بہت سیریسلی آپ کو اس بات پر سوچنا چاہیے۔ جب آپ لکھتے ہیں وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے، ایم ایس ورڈ کے ذریعے سے، تو ایم ایس ورڈ میں کچھ فیچرز ہیں، کچھ فیسیلیٹیز ہیں آپ کے لیے، مثلاً وہ آپ کے لیے وہ جو اسپیلنگ کی مسٹیک ہیں وہ آٹومیٹکلی انڈر لائن کرتا ہے ریڈ میں، یا اگر گرامیٹیکل مسٹیکس ہو تو وہ بھی آپ کے لیے وہ سجیسٹ کر لیتا ہے۔ تو وہ تو آسان ہے، آپ اس کی بھی وہ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے پین کے ذریعے سے یا ٹائپ رائٹر کے ذریعے سے لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے، آپ کی اسپیلنگ میں مسٹیک ہو سکتی ہیں، آپ کے گرامر میں گرامیٹیکل مسٹیکس وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے جب آپ پہلے لکھتے ہیں تو آپ تو ابتدا میں اس چیز پر فوکس نہیں کرتے ہیں، آپ تو اپنے سبجیکٹ میٹر پہ فوکس کرتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ جب آپ نے ایسے کمپلیٹ کر لیا تو پھر آپ نے اس کو ریوائز بھی کرنا ہے۔ یہاں پر اس نے لکھ دیا ہے کہ عموماً رائٹر سمجھتے ہیں کہ 48 آورس کا ٹائم آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ اپنا ایسے کمپلیٹ کریں، پھر 48 آورس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں، پھر اس کے بعد آپ اس کو اپنے ٹیچر کو سبمٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام نہ کریں کہ نائٹ بیفور دا ایسے از ڈیو، کہ جس وقت آپ نے ایسے سبمٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس سے ایک رات پہلے وہ کمپلیٹ کریں، تو ریوائز لازماً کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر اسی چیز کو کہ اف یو ڈو ہیو ڈیفیکلٹی ان مینیجنگ ٹو سے واٹ یو مین یو شوڈ پے پرٹیکولر اٹینشن ٹو پارٹ 3 آف دس بک۔ یہاں پر جو ابتدا میں جو ایک یہاں پر پوائنٹ آپ لوگوں کو بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ اگر آپ کے پاس لینگویج کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہیں،
आप उसको ऑर्गेनाइज सही तरीके से नहीं कर सकते। तो इस बुक का जो थर्ड हिस्सा है उसमें वो सारा जो है वो स्टाइल के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से वो सारी चीज़ें उसमें यहाँ पर बयान की गई हैं, आपको दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर उसने वो लिखा है कि आपका यानी मतलब राइटर का, सब्जेक्ट मैटर का और आपकी लैंग्वेज का जो रिलेशनशिप होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, वो बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। तो अगर इफ़ यू डिसाइड दैट clarifying the relation between you, your subject matter and your language is a significant problem, then it would be a good idea to study closely what E.H. Carr says about how he approaches the writing of history. अगर आपको याद हो ये पेज नंबर 5 to 6 इसी बुक में दिया गया है। E.H. कार ने बताया था वो सब्जेक्ट मैटर के हवाले से या राइटर के हवाले से कि राइटर अपने आप को किस तरीके से डेवलप करता है। आपको बार बार जाना पड़ता है अपनी किताबों में, और आप कहीं से भी आपको आइडिया मिल जाता है, आप उसके लिए कोई नोट लिख देते हैं। फिर इसके बाद इससे आगे, इससे पीछे वगैरह जहाँ कहीं से भी आपको कुछ मिल जाता है तो आप उसको लिखते हैं। तो आप अगर वहाँ पर जाएं, आप उसको स्टडी करें, वो पहले भी हमने स्टडी किया हुआ था, तो उसको बड़ी तफसील के साथ आपके लिए बयान किया गया है वहाँ पर कि किस तरीके से आप इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि अगर आप कहते हैं each time you go around the cycle of reading, writing and thinking, you are gradually improving your understanding of the subject matter and your expression of that understanding in English. देखिए ये वो जो कार का उन्होंने बयान किया कि इसमें क्या होता है, आप रीडिंग करते हैं, फिर रीडिंग के बाद आप राइटिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, फिर इसी थिंकिंग से आप राइटिंग पे आते हैं, फिर इसी राइटिंग से फिर आप मज़ीद रीडिंग पे जाते हैं। तो ये एक साइकिल सा होता है जो चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाता है। वो जो कार का साइकिल था बयान किया गया था। यू आर ग्रेजुअली इम्प्रूविंग यूर अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, आपकी जो टॉपिक के हवाले से अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाता है, आपकी सब्जेक्ट मैटर का और आपकी एक्सप्रेशन दोनों का। You are getting away from that Mephistophelian voice in you which say, I understand this but I just can't express it. बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग कहते हैं कि I understand this but I can't express this. ये तो मैं समझता हूँ लेकिन मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो इनसे निकलने के लिए आपको ये प्रोसेस करना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग और थिंकिंग, और फिर थिंकिंग से राइटिंग, और रीडिंग और थिंकिंग से फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। तो ये इस तरीके से आप इस चीज़ से निकल सकते हैं कि आप समझते तो हैं लेकिन आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। If you cannot express it, the presumption must be that you don't sufficiently understand it. अगर आपके पास मसला ये है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने सब्जेक्ट मैटर को, तो शायद आपने उसको सही तरीके से नहीं समझा है। तो इसलिए आपको दोबारा से रीडिंग पे जाना होगा, आपको थिंकिंग पे जाना होगा। तो फिर आप लिखने के बाद आपको पता चला कि आपकी थिंकिंग में कोई मसला था, फिर आप रीडिंग करें। जब आप रीडिंग करते हैं तो आप सोचते हैं कि यहाँ पर ये मसला वगैरह, यानी मतलब ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहेगा। तो अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि आपने शायद इसको नहीं समझा है। तो आज की इस क्लास में हमने वो जो हमारे पास था सब्जेक्ट मैटर का, ये थोड़ा सा मैंने उस पर ज़्यादा टाइम लगा दिया क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एकेडमिक राइटिंग। तो ये यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम यू एंड यूर रीडर का मतलब है आपके ऑडियंस, आप जिसके लिए लिख रहे होते हैं, आपका जो टीचर हैं, आपका जो सुपरवाइज़र हैं, जिसके लिए आपने लिखना होता है अपने ऐसे को, तो आपने उसको किस तरीके से अपने जहन में रखना होता है। या मसलन यूनिवर्सिटी ने आपको कुछ फॉर्मेट दिया हुआ होता है, कॉलेज ने आपको कोई फॉर्मेट दिया हुआ होता है कि आपने इस फॉर्मेट के मुताबिक लिखना है। अब आपने इस तरीके से तो नहीं करना है कि अपनी तरफ से आप कोई भी किसी भी किस्म की भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें ले आए, नहीं, आपने तो उसी चीज़ को भी तो फॉलो करना होता है। तो इंशाल्लाह इसको फिर तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के इस सेशन को मैं आप लोगों के लिए अगर समराइज़ कर लूँ, या इससे पहले जो क्लासेस हैं वो ये हैं कि जो हमारा इब्तिदाई क्लास, हमने इब्तिदाई क्लास में एलिमेंट्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग उसको डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने 4 एलिमेंट्स को डिस्कस किए थे, राइटर, सब्जेक्ट मैटर, आपके ऑडियंस और आपकी लैंग्वेज। हमने सरसरी वो बर्ड आई व्यू उसमें हमने पढ़ा था।
پھر اس کے بعد جو ہمارا دوسرا کلاس تھا، اس میں ہم نے صرف رائٹر کو ڈسکس کیا ہوا تھا کہ اگر آپ لکھ نہیں سکتے، اگر آپ کو رائٹر بلاک کا مسئلہ ہے، آپ آغاز نہیں کر سکتے، تو کس طریقے سے آپ نے ان مسائل سے نکلنا ہوتا ہے، تو وہ رائٹر پر ہم نے فوکس کیا ہوا تھا دوسرے کلاس میں. جو ہم نے تیسرا آج کے کلاس میں ہم نے سبجیکٹ میٹر پہ فوکس کیا کہ آپ نے اپنے سبجیکٹ میٹر کو کس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ نے ڈسکرپشن سے ہٹ کر یا ڈسکرپشن کے بعد آپ نے اس کو ڈسکس بھی کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے ٹاپک کو انالائز بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس ڈسکرپشن کے بعد انالیسز اور ڈسکشن میں پھر آپ کو یور اون وائس اپنے ٹاپک میں لانا پڑتا ہے، اور اس وائس کو لانے کے لیے آپ کو مختلف قسم کے بکس، مختلف قسم کے جرنلز وغیرہ، جہاں جو اتھینٹک سورسز ہو وہاں سے آپ کو لینا پڑتا ہے. وہ جو چیپ قسم کے میٹیریل ہوتے ہیں آپ نے ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے پھر آپ کا سبجیکٹ میٹر ڈیولپ ہوتا ہے. اور جو کچھ آج ہم نے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ کس طریقے سے پھر آپ کا یہ جو پریجوڈیس ہیں، آپ کی جو اوپینین ہے، انیشیل اوپینین، یہ آپ کا پریجوڈیس جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے پھر یہ ریزنڈ ججمنٹ میں چینج ہو سکتا ہے، تبدیل ہو سکتا ہے. اور یہاں پر جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا، کبھی کبھار یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز میں ایکسپریس نہیں کر پاتا، تو اگر آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہے، یا تو مسئلہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ہے، تو آپ اپنی کتابوں میں جائیں، اپنی سبجیکٹ میٹر کو ریفائن کریں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی لینگویج میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کا جو گرامر ہے، آپ کی جو ووکیبلری ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے ووکیبلری کے لیے، لینگویج کے لیے تو ہم آگے جائیں گے، لیکن اپنے ٹاپک کے حوالے سے بھی آپ نے اس کو فوکس کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے 2 کلاسز ہماری اسی چیپٹر میں رہیں گے. ایک کلاس ہمارا وہ ریڈر کے متعلق ہوگا، آڈینس کے متعلق ہوگا، اور جو ہمارا اس سے اگلا کلاس، اگلے کلاس میں ہم پھر وہ ہماری جو لینگویج ہے اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ ابتدا میں ہمارا انٹروڈکشن ہے کہ ایسے کے لیے ہم اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کرتے ہیں. یہ ایسے کا انٹروڈکشن نہیں ہے، وہ جو انٹروڈکشن ہم ایسے میں لکھتے ہیں، یہ انٹروڈکشن ٹو ایسے رائٹنگ ہے کہ ایسے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کرنا ہوتا ہے ایز اے رائٹر. پھر آپ نے سبجیکٹ میٹر کو، پھر آپ نے اپنے ریڈر کو کس طریقے سے اپنے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے لینگویج کا کیسے خیال رکھنا ہوتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.